सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। शुभम करोति कल्याणं, an ignition of thought and enlightenment. आरोग्यं धनसम्पदः, आत्मबुद्धि प्रकाशाय, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपात्वं देहि कल्याणं, देहि सर्वान् मनोरथान्, यावत् कर्म समाप्येत। I now request all our guests to please take their seats. RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। I welcome Dr. Ruchi Singh, the author herself, Shri Naveen Kumar Shah, our keynote speaker, and Shri Anup Singh, an IIFS officer. Shri Anup Singh is a 1990 batch IFS officer of the Andhra Pradesh cadre with over 3 decades of experience in the forestry sector. He is currently the Director General of the Forest Survey of India. Welcome, sir. I welcome you all to this book review session. Today, humanity stands at a crossroads. On one hand, there is increasing awareness about green spaces, wildlife, and other territorial animals. On the other hand, though, the world witnesses massive destruction of forests and loss of wildlife due to rapid urbanization and infrastructural development. Additionally, worldwide, the illegal wildlife trade market is also thriving. Climate change and its consequent outcomes complicate the unusual human-animal encounters. Sightings of elephants in Indian streets
otters on Cape Town beaches, wild boars in Rome, or big cats in Colombian cities, polar bears in Russian towns, they are no longer, very unusual things. I believe that in this context, it is really heartening to see Dr. Ruchi, who is a historian by training, exploring the jungles of India at her will. She did it all on her own. And she did not stop there. She decided to share her experiences through this Call of the Jungle, Journey of an IFS Officer. And this is the first time she has ventured beyond her usual track. She usually writes on history, religious history to be precise. This is the first time she has changed her track. And this work of hers is, let's just say, beyond mere facts. It is listed as a fiction work, but I read it and I realized that it is a meticulously researched work which includes facts from renowned tiger reserves like Corbett and Ranthambore, as well as lesser known sanctuaries of our country. As I was reading this, I realized that whoever is going to read this book is going to be on a captivating journey. It is enthralling. It is an experience in itself. It offers a rich exploration of the Indian jungle that, some of it maybe we have gone to and maybe we will plan to, but I think she had access to some very daring and adventurous trips that are maybe very difficult for common people to do. So before I talk to ma'am or ask her to talk, let me first call upon Shri Naveen Kumar Shah sir. He is a 2000 batch IFS officer of the J&K cadre, and he is our keynote speaker today. He is currently the chairman and managing director of the National Handicapped Finance and Development Corporation. He has previously served in many important assignments, both in his own cadre as well as with the central government. I welcome you, sir, and I invite you to say a few words, please. थैंक यू। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 1 महीना पहले आसिफ भाई का फ़ोन आया कि सर एक ऐसी बुक आई है जिसमें आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की लाइफ के बारे में, जंगल के बारे में लिखा गया है। तो मेरे मन में सचमुच एक एक्साइटमेंट आया कि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहा जाता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो उस जंगल में जो मोर नाचा उसको दिखाने का काम हमारी जो मैडम है रुचि सिंह जी, इन्होंने किया। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने फिक्सन के माध्यम से ही सही, लेकिन जो एक चैलेंज होता है फॉरेस्ट सर्विस में, उस चैलेंज को इन्होंने बखूबी अच्छे से उकेरा है। इन्होंने हर उस चीज़ को टच किया जो एक जंगल को रक्षा करने के संबंध में एक ऑफिसर की ज़िंदगी में आती है। वो टाइगर की साइटिंग हो, लेपर्ड की ट्रैंकुलाइजिंग हो, एलिफेंट का रेस्क्यूइंग हो, रेड सैंडल्स के स्मगलर के साथ द्वंद्व हो, फिर और जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हो। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है आज जो हम ये देखते हैं कि हमारी क्लाइमेट चेंज, लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज क्या है? बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो हमारी एक ट्रेडिशनल सीजन थी, वो सीजन में क्या बदलाव आया है? वो सीजन में ये बदलाव आया कि हमारी हर एक सीजन एक्सट्रीम हो गई। गर्मी एक्सट्रीम, बरसात एक्सट्रीम, विंटर एक्सट्रीम। बरसात में भी आप एक पैटर्न देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आएगी लेकिन भरपूर आएगी बरसात, उसके बाद लल आ जाएगा, है ना। तो ये एक फ्लड लाती है, ना कि इरिगेशन करती है आपके खेतों में, है ना। इसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? तो टेम्परेचर राइज से। टेम्परेचर राइज हमारी जो डेवलपमेंट का सो कॉल्ड मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू ही ये टेम्परेचर राइज का जो स्टिग्मा है, जो चीज़ है, हमारे ऊपर रखा गया। और इस पूरे चीज़ में एक ही चीज़ मुझे आती है कि फॉरेस्ट अगर हमारा बचा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा। जैसे कार्बन और मीथेन, ये दो चीज़ ऐसी है जो आपके क्लाइमेट में टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और उसमें जो फॉरेस्ट है वो आपकी मेन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को करने का। और दूसरा है ओशन, है ना। ओशन में भी जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसको अगर हमने सही ढंग से मैनेज नहीं किया तो अल्टीमेटली हमारी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी और टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो आज के टाइम में ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये और भी रिलेवेंट हो जाता है। और मैडम ने लगभग हर एक उस चीज़ को टच किया जो एक ऑफिसर की ज़िंदगी में आता है। अभी जैसे मैं पुलिस की भी बात देख रहा था, तो वो कहते हैं ना कि इस्तीफ़ा मैं साथ में रखता हूँ। तो बेसिकली इस सर्विस पे भी वही बात है। आप अगर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में रहेंगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में रहेंगे, तो आप अपना इस्तीफ़ा साथ रखो। जैसे मैं JNK कैडर का हूँ, मेरा ही अनुभव है कि मैं 15 साल में 13 बार मेरी ट्रांसफर हुई, लेकिन मैंने लगभग 10,000 हेक्टेयर लैंड को बचाया। तो आज बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सारे चैलेंजेस को मैडम ने बड़ी बखूबी, भले ही एक फिक्सन के माध्यम से हो, लेकिन बखूबी उन्होंने इस किताब में रखा है। और किस तरह से हमारी पुलिस के साथ समागम होना चाहिए, हमारी जो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसमें जो एक पूरे सारे सर्विस के लोग मिलते हैं, उस सर्विस का किस तरह से हम फील्ड में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी दोस्ती के बल पे चीज़ों को अंजाम देते हैं। हर एक चीज़ को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस किताब में उद्धृत किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इनफैक्ट ये किताब लगभग हर एक लोगों के पास जानी चाहिए और ये देखें कि हमारी क्लाइमेट चेंज में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जंगल, वो किस तरह से हर तरफ से अटैक के साथ लड़ रही है। जो अभी का मॉडल है, डेवलपमेंट है, वो भी एक तरह से समझिए कि आप फॉरेस्ट के अगेंस्ट ही है ना। इसको भी झेलना, किस तरह से कॉल ऑफ जंगल, किस तरह से ये टाइगर अपने आप को बचा रही है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रक्षक तो टाइगर ही है। टाइगर रहेगा तो मतलब फॉरेस्ट रहेगा, है ना। तो ये आप देखिए, ये भी एक इकोलॉजिकल वेव है ना। जो फूड वेव होता है, फूड वेव में सबसे ऊपर होता है टाइगर। तो अगर टाइगर नहीं होगा तो जितने भी हमारे हर्बीवोर्स हैं वो पूरे जंगल को खा जाएंगे, आप उसको बचा नहीं पाओगे। तो इसलिए एक फूड वेव कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और उसमें सबसे टॉप पे टाइगर को रखा है। मतलब टाइगर अगर हमारे ज़िंदा हैं तो हमारा जंगल ज़िंदा है, फिर हमारी क्लाइमेट सही है, हमारी नदियाँ सही है। आप देखो, अगर जंगल आपका नहीं रहेगा, नदियाँ सूख जाएंगी, सूख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। जिस तरह से काम हो रहा है, आप देखिए डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उस मॉडल में नदियाँ सूख रही हैं, लैंडस्लाइड रोज़ हो रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ आपको इकोलॉजिकल डिजास्टर के न्यूज़ आते रहेंगे। जो अनूप सिंह सर हैं, हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी,
हमने ये कहा कि सर फॉरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिमार्केशन का। तो ये कहते हैं मैं भी वो करना चाह रहा था लेकिन सिस्टम ने अभी हमें इजाज़त नहीं दी। मैं अब ज़्यादा इस पे समय नहीं लूँगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ये बार बार यही कहना कहूँगा कि मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उन सब चीज़ों को टच करने की कोशिश की जो अभी तक टच बहुत लोगों ने नहीं किया था और खुल के सामने आया कि कॉल ऑफ जंगल क्या है। थैंक यू। Thank you, sir, for delivering such an insightful keynote address. You made all the right points, and your experience and perspective has added something more to our understanding and enriched our understanding in this discussion. Thank you. I now move on to the star of the day, who is our author. Dr. Ruchi Singh is a passionate wildlife explorer and a dedicated tiger enthusiast. For the past 28 years, she has extensively toured the jungles of India. She hails from Prayagraj and is an accomplished historian who has made two significant archaeological discoveries, including a 1300-year-old artifact. She completed her doctoral research on sacred complex of Prayag and pursued postdoctoral studies in Buddhist studies. For the first time, she has ventured beyond historical facts, as I mentioned earlier, and tried a new genre with Call of the Jungle, where you merge fiction and facts. In a very light-hearted tone, people like to call it a faction genre. I do not personally like the term very much. So I think it is her, from historical writing, she is trying to write something that is happening currently in the Indian jungles. It's a very contemporary sort of writing. The book takes readers on a captivating journey, and I could talk a lot more about it, but I do not want to do that. I want to have a question-answer session with ma'am. She will be the best person to take us through her journey. Ma'am, is that okay? Should we move on to the question-answer session? Okay. So. Ma'am, I would like to. Okay, is this better? So let's just start at the beginning. You know how it all started. You had already established yourself as a historian and as an academician, and then you wrote books on Hinduism, and your book on Kumbh Mela is very famous. And, my question to you is, what prompted this sudden shift? How did the idea of this book come about? Good evening, everyone, and thank you for giving me the opportunity, Asif Sahab, for giving me this opportunity to come here. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके. और I don't know, should I talk in English? Is it okay? Ma'am, yes. ठीक है. Okay. दोनों ही मैं बोलती हूँ, so it's okay. So as Niluji you have told, so basically I am a person from history background, religious history to be particular. I was teaching for some time in Hyderabad Central University. We are based in Hyderabad, Andhra Pradesh. Then my husband, Sanup Singh, who is sitting here, he's an IFS officer, so he was posted as Director General Forest Survey of India to Dehradun. So I relocated to Dehradun. I left my job, and I'm very fond of reading. So after coming through Dehradun, one thing was Dehradun, if you all know, is the Mecca for Indian Forest Service officers. The Training Academy for Forest Service, IGNFA, Indira Gandhi National Forest Academy. It is in Dehradun. Besides that, there are many other
national level organizations in Dehradun, forestry organizations such as Wildlife Institute, ICFRE, FRI, FSI, all these are there. So I had lots of exposure to forest officers. And after coming here, means I used to hear their experiences. And besides that, I myself have been experiencing around 29 years. I've been married to my husband, who's a forest service officer. So all these I decided to pen down, because when I looked in the market, I'm fond of reading, I could not find any comprehensive book which covers. There are many books on IS and IPS officers, their work profile, but on IFS officers I could not find. So I thought, since I'm having first-hand experience, I should bring out this. So I wrote this book. Thank you, ma'am. You're right. I have personally seen books on IS and IPS officers. Yeah, but there are many. when I saw this book, it is my first experience. Yeah, that is why I yeah. brought this out. Thank you very much. My next question to you is about the protagonist of the book. The main protagonist of Call of the Jungle, Journey of an IS Officer, is Naomi Singh. In one of the chapters, you describe the exploits of in-service IFS officers. And my question is, were these accounts the inspiration behind Naomi's character? Yes, the main character of this book is Naomi Singh, a young IFS officer, and her career graph is traced from the time she joins the Indira Gandhi National Forest Academy as a young probationer, and then gradually the various chapters they progress as she gets promoted. Now, actually, this book is based on the career profile of my husband, who's sitting here. You can ask him later, because over the years, like in his different postings, the challenges which he faced, the instances which happened, then we used to go in the forest, all that I experienced firsthand. So all the places which have been mentioned in the book, I've been to all those places, and most of the incidents are based on facts. They are real life, basically on his career. And some, of course, then since I was making a lady protagonist, so I talked to lady IFS officers also. Two of them are his batchmates. Suvarna, Kanchan, they're in Kanchan, she's in Dehradun. Then Abharna, on whom I don't know, many of you might have seen the movie Sherni, it had come. So the movie Sherni, on the lady IFS officer on whom she is based, it is based Abharna. I interviewed her. So all these I interviewed. Then overall, I compiled this into this book, and on that the character of Naomi is based. Thank you, ma'am. It doesn't feel like unreal at all. It feels, because it has so much real life experience that, it feels very, it is all your lived experience. Yeah, actually, because each and every experience and all the places have been personally. So if you read it, the description, places के नाम जो भी हैं आप देखिए, अगर चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे कॉर्बेट हो, चाहे श्रीशैलम हो, चाहे अंडमान्स हो, जहाँ का भी मैंने लिखा है, सब जगह मैं खुद गई हूँ और काफी डिटेल में, मतलब बिसाइड्स दैट रिसर्च भी किया है और पर्सनली लिव थ्रू किया है उसमें। मैम, कहते हैं ट्रैकर्स जो होते हैं वो ट्रैकिंग एक साधना जैसा है ना, वो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो आपकी जो जर्नी है वो करंट जनरेशन को काफ़ी इंस्पायर करेगी, आगे भी काफ़ी इंस्पायर करेगी। इतना आसान तो कतई नहीं होता जो आप, जंगल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपने सर को मेंशन किया तो मैं चाह रही हूँ कि क्या सर आप भी एक सवाल का जवाब देंगे? वो एक्चुअली बेटर पर्सन है जवाब देने के लिए मेरे से, तो उन्हीं की लाइफ पे ज़्यादातर चीज़ें। हाँ, लेकिन मैम आज के स्टार आप हो, बुक आपकी है। नहीं, वो ठीक है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि जंगल में बड़े, इट्स अ पेरिलियस, वेरी मल्टी डायमेंशनल रिस्क काइंड ऑफ अ सिनेरियो। तो उसमें जब मैम जो, अगर आपको पार्टनर ही ऐसा मिला जो बहुत पैशनेट, एडवेंचर लविंग इंसान था, एकदम ट्रैकिंग एंथुजियास्ट था, एज एन ऑफिसर आपने उसको कैसे डील किया? क्या आप बहुत ओके थे कि हाँ ठीक है जाओ जंगल में, और यू वेरी कॉशियस हस्बैंड, did you retard to being like a very over suggesting precautionary measures, ये भी कर लेना वो भी कर, how did you deal with it? I mean, 3 शब्दों में कहेंगे तो जंगल में मंगल किया हमने। ऐसा है कि ये सबसे पहले तो मैं आसिफ साहब को, माटी ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 29 साल पहले ऐसा ही हम बगल बगल बैठे थे जो हमारी शादी हुई थी, तो आपने दोबारा हमें साथ साथ बैठने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच।
वरना हमारी भी साथ कहाँ कि हम ऐसे बैठे। और जो किताब, असल में ये किताब मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि इसकी जब इन्होंने टाइपिंग खुद ही करी थी, उसकी जब स्पेल चेक वगैरह मैं कर रहा था तो उस वजह से मुझे पढ़नी पड़ गई। और पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा मतलब गलत भी लगा कि अगले दिन मैं संडे को पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मेरा ऑफिस है, पूरा काम भी है, लेकिन राइटिंग इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं पढ़ता रहा और सवेरे तक पढ़ करके सीधे उठ करके कंप्यूटर से फिर सीधे ऑफिस गया। तो पढ़ने में जो भी इसको पढ़ता है मज़ा बहुत आएगा। और काफ़ी चीज़ें, इंसिडेंट्स मेरे ही जीवन से लिए गए हैं। फॉरेस्ट सर्विस एक ऐसी नौकरी है ना, शुरू में ही हमको हमारे कुछ सीनियर्स ने कहा था कि मतलब नौकरी में तनख्वाह भी मिलती है और पूरी नौकरी एक तरह से पिकनिक जैसी है। अब मुझे 33 साल हो गए नौकरी करते हुए, मैं पूरी 33 साल की पिकनिक नहीं करूँगा, लेकिन हमारा जो पीरियड था फील्ड में काम करने का, चाहे वो स्मगलर से डील करना है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से डील करना है, लेकिन आखिरकार जहाँ आप लोग पैसा दे के जाते हैं ठहरने घूमने के लिए और समय निकाल के जाते हैं, वहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मतलब ये बहुत ही मतलब एक भगवान की देन है कि हमें इस नौकरी में आने का मौका दिया गया। चैलेंजेस आर देयर, नो डाउट चैलेंजेस आर देयर, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव एंजॉयड ऑल द चैलेंजेस। प्रकाश सिंह साहब की हम बातें सुन रहे थे जब वो पुलिस के बारे में बता रहे थे। सिस्टम में ऐसे इश्यूज हैं, हमें याद है, किताब में शायद दिया है तुमने निर्मल के इंसिडेंट में, दिया 98 में मेरे ऊपर हमला हुआ था। एक पॉलिटिशियन ने, एमपी था, इलेक्शन ख़त्म हुए थे, रिजल्ट नहीं आए थे और हम उस जगह पोस्टेड थे और थोड़ा हमने भी उत्पाद मचाया था क्योंकि बहुत भयंकर स्मगलिंग होती थी और राइस मिल और राइस गोडाउन से पूरा यहाँ से वहाँ तक टिम्बर भरा रहता था और वो लॉरियों में भर करके जाता था बॉम्बे। तो मतलब राइस बैग्स नीचे रख के जाता था। तो जब हमको मालूम चला और हम लोगों ने रेड्स डालनी शुरू किए तो भयंकर रूप से मतलब हर तरफ जो है एक तरह से मतलब लकड़ियाँ मिलनी शुरू हुई। और कोई पेड़ अपने आप नहीं कटता है, कोई जानवर कोई नुकसान नहीं करते हैं, ट्राइबल्स को ब्लेम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ग्रीड है, लालच है, लोलुपता है, जिसके पीछे पूरा जो है सत्यानाश हो रहा है। जब हमने वहाँ पे पकड़ दकड़ शुरू करी तो एक स्टेज आई जबकि राइस मिल में मटेरियल था, गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, हमें बुलाया गया कि यहाँ पे लॉरी सीज हुई है, मतलब मेरा डिसीजन था, मैं गया। तो इन महानुभाव ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इन्होंने करीब 100-150 लोग लेकर आ करके अटैक किया, पत्थर मारे। मतलब भगवान की दया से हम आपके साथ में हैं और हम परिवार के साथ हैं। उसके बाद वो इलेक्ट हुए, एमपी हुए, आज भी वो पॉलिटिकल लाइफ में है और जो उन पर केस रजिस्टर किया गया वो बाद में केस क्लोज कर दिया गया। ये सत्य है जिंदगी का। तो हालांकि हमने थोड़ा सा जॉकुलर मोड में कहा कि हम सर्विस एंजॉय भी करते हैं, यस एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कई बहुत से पेनफुल मोमेंट्स होते हैं जो कि अभी भी चुकते हैं कि ऐसे लोग अगर साथ में हैं। जो पर्यावरण की जो बात कर रहे हैं नवीन जी, ये हमारी पूरी सोसाइटी में एक तरह से दीमक की तरह ये लोग लग चुके हैं, चाहे वो पुलिस के पीछे हो, चाहे प्रशासन के पीछे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पूरी सरकार। जब तक पब्लिक सही और गलत में फर्क करना नहीं शुरू करेगी तब तक इस देश में सुधार होना मुमकिन नहीं। Anyway, sorry for diverting from the topic. No problem, sir. थैंक यू फॉर द आंसर। आप जब बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जनरली पार्टनर्स आपस में बहुत कम्पेटिटिव होते हैं कि नहीं तुम मुझे पूरी तरीके से नहीं जानते हो और तुम मुझे पूरे तरीके से नहीं जानते हो, पर आप जिस तरीके से मैम की राइटिंग से एग्री करते हैं ये वाला इशू आपके बीच में नहीं है। दिस इज़ सो हार्टनिंग टू से इट। मैम, I want the audience to ask you a couple of questions, but before that, I think hearing a passage read aloud by the author provides, valuable insight. Okay. So, do you want to take questions first, or do you want to read the excerpt first? If you, I'll read the small passage. Sure. And Thank then you. Thank you. Thank you for granting my request. Okay. Easier for you. I'll read a very brief passage from this,
As I told earlier, the main protagonist जो इस बुक जिनके बारे में है, एक लेडी IFS ऑफिसर है नौमी सिंह. तो वो कॉर्बेट गई हुई थी, एक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना था. तो उसी वक्त वहाँ पे वो लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बिल्कुल डीप अंदर कोर एरिया में है, और वहाँ पे उनकी जीप खराब हो जाती है, बारिश होती है, वो फंस जाते हैं. तो उसी इंसिडेंट को ब्रीफली जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ. As soon as the sun disappeared in a saffron blurb in the amber horizon, which was interspersed with dark clouds, the dusk suddenly turned to night. Clouds had been gathering over the horizon, and then the thunderstorm struck with a vicious force, lashing suddenly with a blinding flash of lightning and rolling thunder. The water was pouring so heavily on the windscreen of the jeep that visibility was reduced to barely a meter. Naomi and the forest staff tried to pull the jeep terraplane over them, but the strong wind was blowing it over, and it became an impossible task, and they were soon drenched to the bone and had to shout to make themselves heard to each other. Soon after crossing a narrow stream, which had earlier been shallow but was now a torrent of water, their jeep got stuck in mud and slush. The engine spluttered a few times before dying down completely. The situation looked grim. They were stuck in the core area of the Corbett Tiger Reserve in the dead of the night, with a hungry man-eating tigress prowling somewhere close by, who had the upper hand now, as she could see in the darkness while they couldn't. Added to it was the threat of wild elephants, sloth bear, leopards, snakes, and scorpions. So actually this is the life of a forest officer, because जंगल में तो सब जानवर होते हैं, रहना पड़ता है. तो उसी की एक सिचुएशन का ये वर्णन था. Now, does anyone have a question? Good evening, ma'am. Good It was really very nice to listen to the paragraph that you just read. Thank you so It much. must be mesmerizing if you read the entire book together. I hope you do, please. Thank you very much for the description that you gave. Sir, now that the technology has participated in every sphere of our lives, so it must have been to the jungle's lives as well. So what do you think, ma'am, to the descriptions that you have given? Does this technology bring some solace and some relief to the forest officers, or has it still increased the challenges that I'll answer briefly, then I'll hand over to him because he's a better person. Briefly, what I'll answer is yes, technology has increased because now you have GPS. The phones are there, the signal is always not there, walkie-talkies are there, location and all you can see. But it's still inside, deep in the forest, it is man versus animal. So it will always be there. And as for technology, he's the correct person because he is heading the Forest Survey of India, which is an apex technological institution for the whole country. So I'll ask him to answer. देखिए, टेक्नोलॉजी से फ़र्क तो पड़ा है, और मैं भारतीय वन सर्वेक्षण में डायरेक्टर जनरल के पद पे हूँ. तो कहाँ कितना जंगल कट रहा है वो सैटेलाइट इमेजरीज यूज़ करके हम निकालते हैं. हर 2 साल में हम रिपोर्ट निकालते हैं. अभी हमारी रिपोर्ट निकलने वाली है. तो उससे कम से कम मीडिया को, कोर्ट्स को, जनरल पब्लिक को और हमारी सरकार को, पॉलिटिकल लोगों को, सबको मालूम चलता है कि कितना फ़र्क कहाँ पे हो रहा है. जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात है, जैसे हम लोग फील्ड में फेस करते थे, तो जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आई है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो स्मगलर्स के हाथ में भी आ चुकी है. तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, इश्यूज बढ़ गए हैं, जंगल कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है. थिंग्स आर गेटिंग टफर. अब मेरे ख्याल से एक स्टेज आ गई है. मुझे हमेशा मतलब एक विश्वास है कि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसको जब नीचे जाती है तो ऊपर ही आती है. ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे ही रहेगी. एक शायद एक स्टेज आ रही है जबकि लोगों में भी जागरूकता बहुत आ रही है. और अब तो मैं शहरों में देखता हूँ. अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद में बहुत ग्रीनरी बढ़ गई है. मतलब इतना मतलब चौंकाने वाला, मतलब मैं खुद करीब 1.5 साल बाद गया था तो इतना फ़र्क मुझे दिख रहा था. अब पब्लिक में बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हो रही है, और यही एक सोल्यूशन है. इसका सोल्यूशन आपको किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा पब्लिक से. और एक बहुत बड़ा झटका, एक झकझोरा गया था हम लोगों को जब कोविड आया था. और कोविड में जितना भी लोग कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा लिया और हमारे पास ये था वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन आप लाते कहाँ से? कंसंट्रेट तो आप कर लेंगे, ठीक है, सिलेंडर में भी आप भर लेंगे,
लेकिन हवा में आती कहाँ से है? अब वो सारी बातें लोगों ने रियलाइज करनी शुरू करी है। अच्छा है एक तरह से, मतलब कोविड में बहुत बुरा हुआ, बहुत लोगों की मौत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए।